اپنے نظریے سے تجدید عہد وفا کا دن ملک بھر میں یوم پاکستان آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی دی گئی، مساجد میں ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ISPR کے مطابق بارش کے باعث 23 مارچ کی پریڈ اب 25 مارچ کو ہوگی۔ پریڈ میں تینوں مسلح افواج سمیت مختلف اداروں کے دستے حصہ لیں گے۔ 25 مارچ کی پریڈ کا وقت اور مقام وہی ہوگا جو پہلے سے طے شدہ ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں جمعرات کو عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب بھی ہوئی۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے مزار اقبال پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ لاہور میں یوم پاکستان کا آغاز پاک فوج کی جانب سے اعلی صبح محفوظ شہید گیریزن میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ اس موقع پر فضا گولوں کی گھن گھرج اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب بھی ہوئی۔ پاک فضائیہ کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل ندیم اختر کو ایئر فورس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ ایئر وائس مارشل ندیم اختر نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ یوم پاکستان کے موقع پر وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ سمیت اہم شخصیات نے مزار قائد پر حاضری دی اور بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے مزار قائد پر حاضری دی، فاتح خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ اس موقع پر کابینہ اراکین اور دیگر بھی موجود تھے۔ بعد میں دونوں نے یادداشت کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر سندھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ کوشش کریں کہ آنے والے وقت میں قائد اعظم کے تصور پاکستان کو آگے لے کے چلیں۔ یہ عہد کرتے ہیں کہ جس ویژن کے اوپر قائد اعظم نے پاکستان کا قیام کیا تھا، ایک آزاد مملکت اسلامیہ پاکستان، جس کے اندر تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں گے، وہ وطن آج ہمارا ماڈل وطن ہے۔ مراد علی شاہ نے اس موقع پر کہا کہ اس دن ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ قائد اعظم نے بھی کشمیر کو شہر کہا، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جو ظلم اور بربریت خاص طور پہ 5 اگست 2019 سے بھارت میں یہ شروع ہوئی تھی، اس دن کو بھی یاد کر کے اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ قائد اعظم نے ہی کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا تھا اور اس شہرک کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں اور ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے بھی مزار قائد پر حاضری دی، فاتح خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صدر مملکت عارف الوی نے یوم پاکستان کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں کہا ہے کہ آج ہم بانیان پاکستان کو ان کی خدمات اور قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط اور خوشحال ملک بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں، پاکستانی معاشرے کو اقلیتوں کے لیے انسانیت دوست اور روادار بنانے کی جدوجہد جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ آج اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، بھارتی سیکیورٹی فورسز نے کشمیریوں کو 7 دہائیوں سے محکوم بنا رکھا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا صدر مملکت عارف الوی کے نام خط۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کی پارٹنرشپ علاقائی امن و خوشحالی کے مشترکہ مقصد پر مبنی ہے، مشترکہ چیلنجز کے لیے باہمی تعاون جاری رکھیں گے، پاکستان کے ساتھ یہ شراکت داری مستقبل میں مزید مضبوط بنائیں گے، افغانستان میں امن، کورونا وبا اور ماحولیات سے متعلق امور پر باہمی تعاون جاری رہے گا۔ امریکی صدر نے یوم پاکستان کی مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے یوم پاکستان پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 23 مارچ 1940 ایک تاریخی موقع تھا۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے خود کو ہندوتوا ذہنیت کے جبر اور غلامی کے شکنجوں سے آزاد کرنے کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج ہم بابائے قوم اور تحریک آزادی کے ان تمام رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان رہنماؤں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد کیا اور ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کی۔ تنظیم کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ویژن پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک حقیقی جمہوری فلاحی ریاست میں تبدیل کرنا ہے۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी दूसरे रोज भी हो रही है। पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। सवात शहर और कर्बो जिवार में 2 रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। कलाम और मालम जब्बा में वक्फे से बर्फबारी ने वादी के हुस्न को मजीद हसीन बना दिया है। लाईकोट के मकाम पर ग्लेशियर गिरने से बहरीन कालाम रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। लोअर दीर में रात से तेज बारिश हो रही है। शाही, कलपानी और बनशाही में बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई है। हंगू, बनू, मालाकंड और खैबर में भी वक्फे से बारिश जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के शहरों अस्तोर, खिजर और दियामर में 2 रोज से बारिश हो रही है। दारेल, तांगीर, बाबुरसर टॉप, बटुगा टॉप, फेरी मेडोज, नागा पर्वत और अस्तोर के बलाई मकामात पर बर्फबारी है। अस्तोर वैली रोड मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। शिंदूर टॉप पर बर्फबारी के बाइस गिलगित चित्राल जमीनी राब्ता मुनक़ता है। बिहाड़ी में बारिश के दौरान छत गिरने से 1 बच्ची जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। सरगोदा, जहानिया, टोबा टेक्सिंग, चनियोट, कामोकी और मियांवाली समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश से बिजली का निज़ाम मुतासर है। आजाद कश्मीर के जिला नकियाल में तेज आंधी से पुलिस थाना की इमारत की जस्त की चादरें उड़ गयी। मुतादिद साइन बोर्ड जमीन बोस और दर्जनों दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बाग में भी बारिश हो रही है। और ताज़ा खबर ये है कि स्वात में लाईकोट के मकाम पर ग्लेशियर गिरने से बहरीन कालाम रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गया है। ग्लेशियर गिरने से मकामी अफराद और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएं कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बंद रास्ते को खोलने के लिए इमदादी कार्रवाई जारी है। रास्ते की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बर्फबारी और बारिश में पैदल ही लोग ग्लेशियर क्रॉस कराने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत ये कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि ग्लेशियर गिरने से मकामी अफराद और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्वात में लाईकोट का ये मकाम है जहाँ पर ग्लेशियर गिरने से बहरीन कालाम रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। इस वक्त लाहौर में कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के बाद हमने एंड पे रखा कि ये हमारा अगर हमारे सारे बराहिल जो है वो कामयाब नहीं होते तो फिर हम इसको हतमी तौर पे इस्तीफे के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। अब गुजारिश ये है कि इससे पहले मराहिल जलसे हुए, बड़े कामयाब हुए, रैलीज हुई, बड़ी कामयाब हुई, बाय इलेक्शंस हुए, बड़ी कामयाबी हुई, सेनेट हुई, बड़ी कामयाबी हुई, सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, बड़ी कामयाबी। तो जो बाकी पॉइंट्स एक आध रह गए हैं, अगर हम उसमें भी जाते हैं तो हम बड़ी कामयाबी की उम्मीद रखते हैं और उसके लिए पब्लिक मोमेंटम भी बनेगा और हुकूमत का ठहरना मुमकिन नहीं रहेगा। और गिलानी साहब अगर उस दिन उनका वो बदनीयती से डाका मार के अगर उनकी उस फतह को वक्ती तौर पर रोका ना जाता और उस दिन वो चेयरमैन डिक्लेयर हो जाते तो आज पाकिस्तान का सिनेरियो मुख्तलिफ होता। इसी तरह हम अपने दोस्तों से गुजारिश कर रहे हैं और मजीद करेंगे उनके साथ अपनी सीसी के हदायत की रोशनी में कि हमें हमारी गुजारिश को सुनिए जरूर। हुआ ये कि गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ चेयरमैन सेनेट का और उसके बाद पीडीएम की मीटिंग रखी गई। तो जो बातें मीटिंग के अंदर बैठ के करनी चाहिए थी, हमसे तो नहीं कहा गया कि उसमें इस्तीफे देने का ऑप्शन लाजमी है। किसी मीटिंग के अंदर ये तय तो नहीं हुआ था। लेकिन अगर हमारी क़यादत, और मुझे बड़ा एहतराम है अपनी पीडीएम की क़यादत का, लेकिन अगर हमारी क़यादत लेवल पे ये एतराज़ आ जाए कि जी अगर इस्तीफे नहीं तो लॉन्ग मार्च का फ़ायदा क्या, तो मेरे ख्याल में ये बात वो थी जो मीटिंग के अंदर बैठ के करनी चाहिए थी, जो मीडिया के जरिए नहीं आनी चाहिए थी, जो हमें मैसेज नहीं मिलना चाहिए था। फिर उसको बाकी लीडरशिप ने भी उसको फॉलो किया, तो इससे एक बदमज़गी सी हुई। तो हम इसीलिए बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि जो बातें बंद कमरों में बैठ के क़यादत में करनी होती है, बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, अगर वो इख्तलाफात हम आपके जरिए बैठ के मीडिया में डिबेट करेंगे, आप नए नए सवाल उठाएंगे तो उससे हम बढ़ जाएंगे। तो हमारा मौक़िफ़ आज भी है कि हम इस्तीफ़ों के ऑप्शन के साथ हैं। पीपल्स पार्टी उन 26 पॉइंट के एक एक पॉइंट के साथ खड़ी है। हाँ, हम ये कहते हैं कि जो आप कुछ पॉइंट छोड़ के, कुछ स्टेप्स छोड़ के आगे जाने की बात कर रहे हैं और आप हतमी स्टेप पे पहुंच रहे हैं, उसके लिए हमारे ख्याल में हो सकता है हमारे दोस्त दुरुस्त हों, हो सकता है हम दुरुस्त हों, लेकिन हमारी दानिश्त में उसके लिए वक्त मुनासिब नहीं है। और हमने जो कुछ आपको माजी में कहा वो प्रूव हुआ, या हमने कहा तो वो प्रूव सबने मिलकर उसको कामयाबी की सूरत में ढाला। आज भी हमारी गुजारिश है
लेकिन अब इस पे बातें मजीद जो हैं हम वो अपनी सीसी के बाद सर जो बातें मीटिंग में होनी चाहिए वो बात ज्यादा क्लियर होगी, तो आप भी समझते हैं कि अगर ज्यादा लेट होगी मीटिंग तो भाव ज्यादा पैदा होगी, तो अगर जल्दी हो जाए मीटिंग तो आप क्या समझते हैं? हमारी कोशिश ये है कि जल्दी हो लेकिन क्योंकि मुल्क भर से लोगों ने इकट्ठा होना होता है, सीसी जो है हमारी, तो इसलिए हमारी रूटीन में एक सीसी थी जो होनी है रूटीन में, तो उसमें हमने रखा कि ये एजेंडा उसका भी आइटम होगा और उसमें सारे मुल्क से लोग आए होते हैं तो ज़्यादा बेहतर उस पर डिस्कशन होगा। आपने कहा कि पीडीएम के तमाम मुद्दों पर पीपल्स पार्टी अमल करेगी, तो फिर सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देगी? जी, पीपल्स पार्टी ये कोई हमारा, पहली तो बात है, चार्टर का हिस्सा नहीं है। हुआ था कि मैंने गुजारिश की, हमारे चार्टर का हिस्सा नहीं है। ये हमारे दोस्तों ने किसी मीटिंग के अंदर गुफ्तगू की थी और उसके ऊपर भी हमें उनकी राय का एहतराम है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये जो गुफ्तगू है कि पीपल्स पार्टी किसी असूल से इनहराफ कर रही है, बिल्कुल गलत। पहली बात तो ये कोई तयशुदा असूल नहीं था, कुछ मीटिंग्स के अंदर डिस्कशंस होती हैं जो फाइनलिटी में नहीं जाती। ये लीडरशिप लेवल पे कोई डिस्कशन इसकी नहीं हुई थी, कमेटी के अंदर बात हुई। दूसरी गुजारिश ये है, फिर भी हमें उनकी बातों का एहतराम है, दूसरी गुजारिश ये है कि गिलानी साहब को जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, तो गिलानी साहब को मुस्लिम लीग ने, JUI ने, हमारे तमाम PDM की जमातों ने हमारा साथ दिया, उनको कैंडिडेट बनाया, उनको वोट दिए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं दिली तौर पे, और उन्हीं के तावन की बदौलत हम कामयाब हुए। लेकिन ये बात भी तयशुदा है कि ये कुछ जीती हुई सीट अपोजिशन की नहीं थी जो पीपल्स पार्टी को फेवर के तौर पे दी गई। पीपल्स पार्टी ने खुद वॉलंटरीली PDM के लिए ये जद्दोजहद का एक मैदान लगाया और खुद अपने आप को ऑफर किया, इस मुश्किल में डाला, एक मिनट जी, इस मुश्किल में डाला। उन सब दोस्तों के तावन से हम वो सीट जीते। फिर चेयरमैन सेनेट में भी उन दोस्तों के तावन से ही हम आगे बढ़ सकते थे, वरना पीपल्स पार्टी के पास तो ये पोजीशन नहीं है, और हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये बात भी आप जानते हैं कि ये सीट भी कोई ऐसी नहीं थी कि जो हमारे हाथों में पड़ी हुई थी, सीधी कोई भी जीत सकता था, ऐसा नहीं था। हम आज भी समझते हैं कि गिलानी साहब ने इस सारे इलेक्शन को या सारे सिनेरियो को लीड किया है। वो सीनियर मोस्ट बंदे हैं पार्लियामान के अंदर, सेनेट के अंदर, वो साबिक वजीर आजम रहे हैं। जब तक उनके फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि ये कानूनी मजबूरी है कि उसका जल्दी लीडर ऑफ द अपोजिशन का फैसला करना है, तो हमने एप्लीकेशन डाल दी है, और वो एप्लीकेशन हमारी वजह से डिले नहीं हुई। सेनेट सेक्रेटेरिएट को बंद कर दिया गया था, कागजात अवेलेबल नहीं थे, शवाहिद अवेलेबल नहीं थे, उसकी वजह से अब वो फाइल हो गई। तो जब तक गिलानी साहब का वो फैसला नहीं हो जाता, और वो जल्द हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई बड़ी एविडेंस का इशू नहीं है, लॉ पॉइंट है एक सीधा सा, उस वक्त तक इस मामले को गिलानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन मानना चाहिए। वो सीनियर मोस्ट बंदे हैं, और उसके बाद बैठ के देख ले, कोई हर्ज नहीं है, हमें तो कोई इस बात पे एतराज नहीं। लेकिन इसको इतना बना दिया जाए, और लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट को इतना बड़ा ओहदा भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी मरे जा रही है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ बातें असूल की हैं, और खास तौर पे इन हालात में गिलानी साहब अगर उसको लीड करते हैं, महीना 2 महीने इतना ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिहाजा हम समझते हैं कि इस बात को लॉजिकली बात है। जैसे कि आपने कहा कि मीडिया में बातें